ठीक है। Okay, good morning, dear students. Today we will discuss next topic of Unit 2, 2.6 Company Organization. Students, we have already discussed sole trade, sole proprietorship, partnership, and cooperative societies into family business. All have limited resources, unlimited liability, and absence of continuity. So that's why these limitations are available in all forms of organizations. But to overcome these problems, the joint stock company came into existence. So joint stock company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members. So it is capable of mobilizing large amount of capital with provisions of limited liability and to organize large scale operations. मीन्स जो उसमें लिमिटेशंस थी उन बिजनेस फॉर्म्स में, वही लिमिटेशंस को यहाँ पर ओवरकम करके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आई है, और उसके अंदर यही जो जो लिमिटेशंस उनकी थी उनको इसने कवर किया है. ओके, सो द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, ये जो एक्ट है दैट इज द अमेंडेड हुआ था, ये कंपनीज एक्ट 1956 was amended in 2013. Okay, so it is described as an artificial person, then identity separate from its members. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी आइडेंटिटी जो है वो मेंबर से बिल्कुल सेपरेट है. सो कंपनी रिसीव फंड्स either from its own capital or through borrowing from outsiders. Okay, so the shares of the company are transferable from one person to another. Thus, the activity of a company does not depend on existence of shareholders. Means कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. जो डायरेक्टर्स हैं उनको चूज करेंगे शेयर होल्डर्स, और डायरेक्टर्स जो है वो मैनेज को. ओके, first of all, meaning of company. A company is that form of business organization which is willingly established by some persons for earning profit under the Companies Act. Many persons jointly invest capital in a company and therefore it is called joint stock company. So its capital is divided into transferable shares, which means that its shares can be generally bought or sold. Liability of its members is limited. So the business of the company is stable and its business is run through a common seal. Till now, in India, the incorporation of companies is done under the Indian Companies Act 1956, but now Companies Act 2013 has been came into existence. Okay. Then definition, you can do any one definition. Companies is an artificial entity with a perpetual succession of and common, right? Now the next of features or features. First is the incorporated association of persons. So company is an incorporated or registered association of persons. So under the Companies Act, no single individual can form a business. A minimum number of 7 persons can form a public company, while a minimum number of 2 persons can be form of private company. प्राइवेट में इसका मिनिमम नंबर ऑफ जो पर्सन है वो 2 है, और पब्लिक कंपनीज में इसका जो मिनिमम नंबर है दैट इज द 7. So hence a company is an association of persons which has more than one person. So its registration is essential. Okay, जरूरी है, रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती. सेकंड इज द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. It is creation of law and exists independent of its members and is known as artificial person as it cannot breathe, eat, run like human. हालांकि उनकी कोई वो नहीं है कि वो पर्सन्स की तरह कुछ ब्रीथ नहीं कर सकती है कुछ. दिस इज द आर्टिफिशियल पर्सन. Okay, it is an artificial person having no body, no soul, no conscious. It cannot breathe, eat, run
and talk. But like a natural person, a company can own property, okay, incur debts, borrow money, enter into a contracts, sue and be sued. So it can be conduct a lawful business and enter into contract with others. Okay. Second is the artificial legal person. Sorry, third is the separate legal entity. Students, incorporation company acquires a separate legal existence in the eyes of law. So the assets and liabilities of the company are separate from those of its owners. So both are different, both are separate. Okay. So the existence of company is separate and free from the members. A company can keep property in its name and enter into agreement. It can file suit against anybody and it can also be sued. All the liabilities and assets belong to the company itself and not to the owners. Like the partnership organization, the members of the company are not bound by the action of the company, and company is also not responsible for the action of the members. Both are separate. मीन्स मेंबर्स के एक्शन के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कंपनी के एक्शन के लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज द परपेचुअल सक्सेशन. कंपनी हैज परमानेंट और परपेचुअल एग्जिस्टेंस. मीन्स इसकी जो एग्जिस्टेंस है इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और कमिंग और गोइंग ऑफ द मेंबर्स. उससे इफेक्ट नहीं हुआ. सो द कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ. इट कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय लॉ. इसकी जो स्टार्टिंग है वो भी लॉ से ही हुई है और इसका एंड भी लॉ से ही होगा. सो इट विल cease to exist only when specific procedure of the winding up is followed. जब एक प्रॉपर इसका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा तब इसको वाइंड अप आप कर सकते हो. ठीक है. यानी कि किसी भी मेंबर के आने से या जाने से फर्क नहीं पड़ेगा. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी goes on forever. Next is the limited liability. The shareholders of the company enjoys benefits of limited liability. जो कि सबसे मेन लिमिटेशंस रही हैं सो पार्टनरशिप और सभी की. सो दिस इज द बेनिफिट in the company's organization. So only the assets of the company can be utilized to settle the claims of its creditors, as business is a separate entity distinct from its members. यहाँ जो business है और जो members है both are separate. तो members business के लिए यानी कि company के लिए और company members के लिए responsible नहीं है उनके actions के लिए. तो यहाँ जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज है, पर्सनल प्रॉपर्टीज वो जो उनकी सेफ है, यहाँ पर उनमें कोई रिस्क नहीं है. Okay, the liability of the shareholders in the company is generally limited to the value of their share. The word generally here means that the company can be unlimited liability or limited liability through the guarantee, but its usage is almost negligible. Students, कुछ एक companies unlimited liabilities होती हैं, उनके आगे mention होगा, लेकिन limited liabilities जो हैं, limited जो private companies होती हैं या limited liabilities जो होती हैं, उनके लिए liability जो है वो limited ही रहेगी. Because of the huge liability or huge losses can only demand the balance of all amount on the shares from its members. So because of legal status and existence of the company, all the liabilities rest on the company itself and not on the members for the transfer of shares. Next point is the common seal. Company is an artificial person, so which operates in its own name. Own name is mechanism is required to authenticate its documents. So common seal or stamp purpose on which the name of the company is used for this purpose. Common seal क्या है? This is the, आपको पता है company is artificial person, so which acts through, किसके थ्रू करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ये वर्क करेगी. So as the company cannot put its signature, the law requires every company to have a seal and gets its name. जो उसका नेम होता है ना वो सील के ऊपर मेंशन होता है, मतलब वो अपनी कॉमन सील यूज करेगी उसमें. The board of directors enters into the agreement with the others and indicates company approval through the common seal. कंपनी की जो उसमें वो शो करने के लिए उसकी एग्रीमेंट में कुछ भी अप्रूवल शो करने के लिए उसकी कॉमन सील यूज की जाएगी. सो एनी एग्रीमेंट विद द एब्सेंस ऑफ कॉमन सील इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी. कॉमन सील के बिना कोई भी एग्रीमेंट जो है वो लीगल नहीं माना जाएगा. ओके. Next is the transferability of shares.
The shareholders enjoy a right to transfer their shares to other persons in the open market or at the stock exchange at the price prevailing in the market at that time. Shareholders जो होते हैं वो अपने शेयर्स को किसी भी पर्सन को कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब सेल परचेज होता है ना, तो वो ओपन मार्केट में जो भी रेट उस टाइम पे प्रिवेल होगा मार्केट में, उस रेट पे उसको कभी भी सेल परचेज कर सकते हैं. So the shares of public companies can be freely transferred. So it means that there is no legal restriction on their sale and purchase. जैसे कि पार्टनरशिप में तो एक दूसरे को अपना वो नहीं सेल परचेज कर पाते थे, ठीक है, लेकिन इसमें वो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. तो बोथ आर सेपरेट, ये बात पॉइंट हमने पहले भी क्लियर किया. सो सिंस द नंबर ऑफ ओनर्स शेयर होल्डर्स इन द कंपनी बिजनेस इज लार्ज, सो दे आर स्प्रेड टू डिस्टेंट प्लेसेस. They cannot interfere the day-to-day routine of the company. So therefore, in order to run the affair of the company, they elect their representative who are called directors. यहाँ पर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स. ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज द मैनेजिंग बॉडी विच मैनेजेस द कंपनीज बिजनेस. पूरा बिजनेस मैनेज कौन करते हैं यहाँ पर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, सो दस द मैनेजमेंट यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एंड द ओनरशिप जो कि शेयर होल्डर्स हैं आर सेपरेट इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. बोथ आर सेपरेट. ओनरशिप और मैनेजमेंट बोथ आर सेपरेट. नेक्स्ट इज द रिस्क बियरिंग. The ownership of a public company is held by the large number of shareholders. Consequently, the risk of loss gets divided among the large number of shareholders, क्योंकि लार्ज स्केल पे ही होती है और उसमें जो रिस्क है वो भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स में डिवाइड हो जाता है, who are liable to contribute to the extent of their holding in the company. So इन जैसे सोल ट्रेड में क्या था कि सारा जो भी बियर कर रहा है वो सिंगल पर्सन कर रहा था. पार्टनरशिप में पार्टनर्स फेस कर रहे थे वो सारी प्रॉब्लम, रिस्क उनका. बट इन द केस ऑफ कंपनी रिस्क इज डिवाइडेड अमंग द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड नोबडी फील्स द बर्डन. इसमें एक पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं है या कुछ एक पे नहीं है, सब पे ही आएगा लेकिन इक्वल आएगा. सो दैट्स व्हाई कंपनी डज नॉट हेजिटेट टू अंडरस्टैंड मोर रिस्की वेंचर. इसलिए वो ज्यादा रिस्क लेती है. सो वेयर देयर इज मोर रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होता है अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिट्स आर मोर. Okay, so the company has the capability to undertake more risky ventures and its profit goes to its members and the society. जितना ज्यादा रिस्क लेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना उन मेंबर्स और सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता चला जाएगा. ओके, these were the features. Now next topic is the evaluation of the company organization. Evaluation means the merits and demerits of the company organization. So जैसे कि हमने सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में भी देखा कि उनकी जो लिमिटेशंस थी, जिसमें कि लिमिटेड लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटी, स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन सब ये जो लिमिटेशंस थी इनको ये इंप्रूव करती हुई, ओवरकम करती हुई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब बेनिफिट्स हो गए हैं. सो इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंपनी इन कंपैरिजन टू द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब आप इजीली इनको कंपेयर कर सकते हो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. सो द मेरिट्स, फर्स्ट वन इज द limited of the company are liable to pay the uncalled up amount of shares purchased by them. So जैसे कि सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप ट्रेड आपने देखा, उसमें क्या था, पर्सनल एसेट्स जो हैं वो भी सेल हो जाती थी, लेकिन शेयर होल्डर्स यहाँ पर कैन नॉट यूटिलाइज टू पे ऑफ द बिजनेस लायबिलिटीज. सो हेंस द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड. यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ना कंपनी में, उतने तक के लिए ही वो लायबल है. सो दे ऑलरेडी नो इट, वो सब कुछ उनको पहले से ही पता है. सो दिस एनकरेज द पीपल टू द मेक इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. इससे लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. अल्टीमेटली द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग. इसमें इसीलिए ग्रोथ ज्यादा रहेगी, ज्यादा रहती है. नेक्स्ट इज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी. Any shareholder of a public company can transfer his shares freely without the approval of other members. यहाँ पर किसी से परमिशन नहीं लेनी है, आपको किसी से कंसल्ट नहीं करना है, आप कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो. जबकि पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं था. पार्टनरशिप कभी भी अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर ऐसे all other partners, उनको सबका कंसेंट लेना जरूरी था. So this facility of transfer of shares makes the investment liquid, which means the share can be quickly converted into the cash whenever needed. इसका मतलब ये होता है कि जब भी वो एक बंदा अपना शेयर छोड़ना चाहता है, सेल करना चाहता है,
वो उसको कैश में कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी से और लिक्विडिटी बनी रहती है। लिक्विडिटी यहाँ पर कैश को बोल रहे हैं, मतलब कैश अवेलेबल रहता है मार्केट में ऑलवेज, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। सो द इम्प्रेस्ड बाय दिस एडवांटेज पीपल लाइक टू इन्वेस्ट देयर मैक्सिमम सेविंग इन द कंपनी। अब इसमें जो भी ज्यादा से ज्यादा अपने सेव करना चाहता है अपनी सेविंग्स को, तो वो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, उनको नीड हो। ओके, देन थर्ड इज द कॉन्टिन्यूटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अभी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया फर्स्ट कि जो दोनों एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी जो है वो मेंबर से वो डिफरेंट है, अलग है, सेपरेट है। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स लाइफ इन केस ऑफ डेथ एंड डेथ ऑफ एनी शेयर होल्डर और एनी बैंकरप्ट्स और देयर मैडनेस। उनके मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होने पे, उनके छोड़ के जाने पे, उनकी बैंक यानी कि इंसॉल्वेंट वगैरह होने पे कभी भी किसी भी कंपनी को इफेक्ट नहीं होगा, वो कंटिन्यू अपना वर्क करेगी। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल एग्जिस्टेंस दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यही इसका बेस्ट पॉइंट है कि इसकी कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन द कंपनी बिजनेस। क्यों? बिकॉज द सफिशिएंट कैपिटल, सफिशिएंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ये जो पॉइंट्स जो कि पहले आपने देखे बिजनेस लॉन्च में, ये सब लिमिटेशंस में आए थे, ये सब इनके बेनिफिट्स में आ रहे हैं। सो हेंस द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस आर अवेलेबल टू द कंपनी। So it reduces the per unit production cost and consumers get good quality products at cheap rates. इससे इनकी ग्रोथ और एक्सपेंशन का स्कोप बढ़ जाता है। और नेक्स्ट इज द एफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ मैनेजमेंट डिफरेंट है और जो ओनर है वो डिफरेंट है। जबकि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप आपने देख रहे थे कि वही लोग मैनेज कर रहे थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी वही मेंबर्स मैनेज कर रहे थे जो कि ओनर है। So the company can utilize the service of experts because of the availability of the financial resources in abundance and the continuity of the business. Manager can play an important role in looking. यहाँ पर जो board of directors हैं, ये जो managers हैं, managing directors हैं, ठीक है, ये सब लोग ये सब करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, सारा मैनेज करते हैं। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर हम जो पर्सन रखते हैं मैनेजर एज ए डायरेक्टर या एज ए मैनेजर, वो सब लोग एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट पर्सन होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। So the benefits of the service of the management expert is not available in case of sole trade and partnership business because the limited resources, उनके पास resources ही limited होते हैं, तो वो अलग से मैनेजमेंट वगैरह नहीं अवेल करवा सकते। So even if they are ready to appoint experts in their organization, the experts will not like to join them because of the lack of continuity. अब अगर पार्टनरशिप और सोल ट्रेड अगर मान लो करवाते भी हैं अपॉइंट एक्सपर्ट्स को, तो तब भी एक्सपर्ट्स जो है उन ऑर्गेनाइजेशन में जाने की बजाय कंपनीज में प्रेफर करते हैं। रीजन यही है कि उनको ये लगता है कि जो बिजनेस है सोल ट्रेड और पार्टनरशिप का, ये कंटिन्यूटी में ये रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये इसलिए वो लोग कंपनीज में प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंपनी की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। ओके, भी है डिफिकल्टी करना है ना उसका रजिस्ट्रेशन, उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, सॉरी this company is in itself a very difficult and expensive activity, so many documents are to be prepared and deposited in the office and registrar, and the completion of these legal formalities consume much time and money. So these documents include memorandum of association, article of association and prospectus, ठीक है। so 3 documents इसमें ऐड होते हैं। so because of the fear of these formalities, जो ज्यादातर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि फिर हम बिजनेस कोई और ही मतलब सोल ट्रेड या पार्टनरशिप में ही प्रेफर कर जाते हैं। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दीज फॉर्मेलिटीज मैनी पीपल डू नॉट थिंक ऑफ स्टार्टिंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ी स्टार्टिंग में इसके स्टार्ट करना है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी हैज गॉट अ publish its accounts and deposits many important documents. कंपनी में कंपल्सरी होता है कि उनको अपने जो अकाउंट्स हैं वो डिस्क्लोज करने होते हैं पब्लिकली, तो सीक्रेसी नहीं रहती है, उनके जो भी वीक पॉइंट्स है वो सामने आ जाते हैं। सो ये इनका एक वीक पॉइंट रहेगा। सो एनीबॉडी कैन सी दीज डॉक्यूमेंट्स आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस। सो इन दिस वे कंसर्न,
सो ये एडवांटेज जो है वो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस में रहता है, क्योंकि उनके जो अकाउंट्स है वो डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है उनके लिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन। Ownership and management are separate, both are separate. So owner of the company जो shareholders हैं hand over the management of the company to few shareholders who are called directors. देखो जो मेन जिनके पास ज्यादा शेयर्स रहते हैं ना कंपनी के, उन्हीं में से कुछ लोग डायरेक्टर्स बन जाते हैं, तो उन्हीं उन्हीं के हाथों में, कुछ एक लोगों के हाथों में ही वो रह जाता है कंपनी पूरी का कंट्रोल. सो द डायरेक्टर्स मेक अपॉइंटमेंट ऑफ द salaried class people in order to give practical shape to the activities of the company. So these people certainly cannot work with the interest and मतलब उतना जो एक ज्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं उसमें, उनको पास टाइम नहीं है, कुछ भी कह लो कि उन्होंने थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर केयरलेस दिखा दिया तो उस केस में कंपनी पूरी जो है वो डाउन जा सकती है ना. तो और जो बाकी लोग हैं इसमें दीज पीपल सर्टेनली कैन नॉट वर्क विद द इंटरेस्ट, इसमें बहुत इंटरेस्ट है वो काम नहीं करते, और which the owners themselves do in case of sole trade and partnership. जबकि पार्टनरशिप और सोल ट्रेड के केस में क्या होता है कि वो ओनर होते हैं, उनको पता है कि अगर वो लोग थोड़ा सा भी केयरलेस करेंगे तो लॉस अल्टीमेटली उनका ही रहेगा. तो यहाँ पर थोड़ा इस चीज में कमी रह जाती है. तो its main cause is the lack of direct motivation to employees. So they know that if they work with more efficiency or reward will go only to the owners. अब यहाँ एम्प्लॉयज भी ज्यादा मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ उनको सैलरी ही मिलनी है, और वो लोग उतना ही काम, जितना भी काम करें उनको सिर्फ सैलरी ही मिलेगी. तो इस केस में क्या होगा कि वो लोग उतना ही काम करेंगे और ज्यादा अपना काम करने की, ज्यादा उसमें एफर्ट्स डालने की कोशिश नहीं करते हैं. ओके, सो दिस चेक्स देम टू वर्क मोर एंड विद ग्रेटर एफिशिएंसी. तो ये जो दे नो दैट इफ दे वर्क विद मोर एफिशिएंटली द रिवॉर्ड विल, उनको पता है कि ज्यादा काम भी करेंगे तब भी रिवॉर्ड जो है वो ओनर्स को ही मिल जाएगा. तो यहाँ मोटिवेशन का थोड़ा सा कमी रहेगी एम्प्लॉयज के लिए भी. नेक्स्ट इज द एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. Excessive government control is another drawback of the company organization. कंपनीज में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेयर रहता है. सो इस वजह से भी मैक्सिमम जो बिजनेस मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप की फॉर्म को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिले इन डिसीजंस. Quick decisions can be taken in case of sole trade and partnership, but it's more time to take decisions. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसमें डिसीजन जो है क्विक नहीं होते हैं, बहुत डिले हो जाते हैं. सो इट इज बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड उसमें क्या होता है कि एक मीटिंग कॉल की जाती है ना, और उस मीटिंग में फिर वो रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, उन सब चीजों में बहुत टाइम लग जाता है. और जब तक क्या होता है जो अपॉर्चुनिटी होती है वो स्लिप हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डाउन हो जाती है. मतलब उस केस में जो आप बेनिफिट ले सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी का वो नहीं हो पाता. ठीक है. नेक्स्ट इज द ग्राफिक मैनेजमेंट. From a legal point of view, the company organization is based on democratic system, but it is only an eyewash. मतलब कहने को ये democratic system है तो, but a company is an institution based on the oligarchic management. It is said that the shareholders collectively elect their representative. ये सब इकट्ठे मिलके एक अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर डू नॉट नो वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. ज्यादातर शेयर होल्डर्स को तो यही नहीं पता होता कि उनका हेड ऑफिस कहाँ है. सो व्हाट द कंपनी डज एंड व्हाट डज नॉट डू, उनको नहीं पता कि कंपनी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है. सो ओनली सम पीपल हु हैव मेजर चंक अदर शेयर्स, एक जो रहता है शेयर्स का वही लोग हेड रहते हैं. सो कंपनी के वही रियल ओनर बने रहते हैं. सो दे हैव कंट्रोल ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी उन्हीं का कंट्रोल रहता है. देयर ओनली फ्यू पीपल हु मैटर एंड द अदर शेयर होल्डर्स आर जस्ट पपेट्स. बाकी लोग सिर्फ एज ए पपेट की तरफ वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास वो कुछ टाइम पीरियड के लिए शेयर होता है और बाद में वो सेल कर देते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए शेयर होल्डर्स नहीं होते. ठीक है. नेक्स्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स. And the company form, there is regular situation conflict because clashing interest in the investors. The chief investors of the company include shareholders and debenture holders. The shareholders want that they should get the maximum dividend, while the debenture holder desired the maximum money should
kept in reserve. क्या होता है कि इसमें जो डेप्ट यानी कि आउटसाइडर्स होते हैं डिबेंचर्स, और शेयर होल्डर होते हैं आपके इनसाइडर्स. इनसाइडर्स ने भी पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब शेयर होल्डर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा फाइनेंस के रूप में कंपनी में वर्क कर रहा है. उधर से डिबेंचर लोन कंपनी को जो पैसा दिया है वो भी वर्क कर रहा है. ठीक है, दोनों ने पैसा दिया हुआ है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट. दोनों की जो क्लैशेस होते हैं वो किस बात पे होते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये रहता है कि जो प्रॉफिट्स हुआ है वो उनमें बांटा जाए एज ए डिविडेंड. डिविडेंड की फॉर्म में जो बांटा जाता है वो शेयर होल्डर्स को आप जो आप एनुअली पे करते हो, और डिबेंचर होल्डर्स को आप देते हो इंटरेस्ट उनके लोन के ऊपर. तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम पैसा जो है वो एज ए रिजर्व में रखा जाए. सो इन दिस वे देयर इज रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. तो इस तरह से कुछ ना कुछ क्लैशेस इनमें होते रहते हैं. This is also the limitation of the company organization. So in conclusion, the company organization has achieved more popularity in spite of the many limitations. इसके बावजूद हालांकि बहुत सारी कमियां भी हैं, but still company organization जो है वो सबसे ज्यादा है और सबसे बेस्ट है. So its importance is increasing, particularly for large size business, where more capital and efficient managerial staff is required. So it can be said that reference to the defects of the company organization, that these defects are the shortcomings of those people who establish the companies rather than those of the company organization system. Okay, हालांकि इतनी कमियां होने के बावजूद भी ये जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है ये डे बाय डे जो है वो ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है. इसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म मतलब फॉर्म को, इस बिजनेस फॉर्म को बेस्ट माना जाता है, और इसी में ही लार्ज स्केल का जो बिजनेस आप कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंपनीज एंड पार्टनरशिप. these points you can do by yourself, students. Now revise this topic and make proper notes. Okay students, thank you so much, have a nice day.